Hello, my dear students. How are you? Hope you are doing good. So, today we'll be discussing about the pointing devices, and we have seen in the last lecture. So, we are discussing about the keyboard and its types. So, we have read so many types of keys on keyboard. Some of the types which we have seen are alphanumeric keys, numeric keys, function keys, and cursor control keys. So I had told you about the input devices and output devices before this, and the keyboard is one of the main input device, and it contains almost 104 keys, and it has the special type of keys such as caps lock key and num lock keys. These keys are called as toggle keys because when we press this type of keys, they toggle, they change their stats from on to off, from one state to another. So there are another keys which we are pressing. Suppose we have to show something different. Let me tell you about the shift, control, and alt keys. So if we want to highlight the document which we have typed in in a window or in a notepad, so at that time we have to use two different keys. One is a modifier key and one is a letter alphabet keys. So at that time we are using the control plus C or control plus A for all the document and control plus C for the desired document. So लेट वी जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉइंटिंग डिवाइसेस. क्या है पॉइंटिंग डिवाइसेस? व्हाट आर पॉइंटिंग डिवाइसेस? एक्चुअली a pointing device is used to communicate with the computer by pointing to the locations on the monitor. So we are using the moments of the we are using to point our work done. So moments of the pointing device are echoed on the screen by moments of the pointer. So some commonly used pointing devices which we are using are, number first is basic pointing device which we are using, or mouse, trackball, and a joystick, light pen, yeah, touch screen. So this pointing device, they are used to communicate with the computer when we are commanding something, when we are going to refer to the computer system to get our work done immediately. At that time we are using our computer, we are using our pointing devices, and mouse is one of the basic pointing device. And there are different types of mouses. Commonly there are three types of mouses. The first one is wireless mouse, second one is mechanical mouse, and third one is optical mouse. So and there are four actions of mouses. Four main actions of mouses are there. So this mouse was invented by Douglas Engelbart. This was invented by Douglas Engelbart, a computer engineer at Stanford Research Center in 1963. And this mouse may be used to position our cursor. जो हमारा कर्सर होता है डॉक्यूमेंट, जब कभी भी हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे एक कर्सर आता है. एट दैट टाइम तो हमें ये पता चलता है कि जो हमारा टेक्स्ट है वो कहाँ से लिखना है हमें, और कहाँ पे इस वक्त कहाँ पे हम डॉक्यूमेंट में हैं, या अगर हम कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उसमें भी ये जो माउस, ये जो पॉइंटर है वो आता है. तो उस टाइम हम पॉइंटिंग डिवाइस का इस्तेमाल करना होता है. वो ये इशारा देता है कि आप कहाँ पे हो. दैट्स इन द फॉर्म ऑफ एरो, दैट्स इन द फॉर्म ऑफ हैंड.
तो सपोज़ एप्लीकेशंस में वो हैंड की सूरत में होता है, या जब कोई किसी डेटा एंट्री ऑपरेटर में हम एक काम करते हैं, या फॉर एग्जांपल वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम काम करते हैं, तो एट दैट टाइम इज़ जस्ट लाइक एन line, just like a line. And in some softwares like Microsoft Paint, and it's this cursor is in the form of arrow. So these pointing device, they are using to get our work done, to point and to draw devices. तो हम क्या करते हैं, to point the specific result, to point the specific work. This is being used by the user to get the desired result done, and it's used to select, या हम ये भी कर सकते हैं, जो हमारा जो हमारी पॉइंटिंग डिवाइसेस है, मुख्तलिफ पॉइंटिंग डिवाइसेस, हम उससे लाइन भी बना सकते हैं, या कोई भी शेप हम ड्रा कर सकते हैं, या कुछ भी लिख सकते हैं, या हम एरो की शेप बना सकते हैं, या हम गोल भी बना सकते हैं, राउंड, ओवल शेप, वट एवर. तो एट दैट टाइम, तो वी आर यूजिंग द पॉइंटिंग डिवाइसेस लाइक आवर माउस. तो जो माउस से हमारा बहुत सारे मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल भी दिए गए हैं इन्होंने पॉइंटिंग डिवाइसेस के, जैसे जॉयस्टिक हैं, लाइट पेन, टच पैड और ट्रैक बॉल. पहले हम माउस देखेंगे. जो माउस है, माउस क्या है? इस pointing device used to point a particular place on the screen and select to perform one or more actions. तो क्या है ये माउस? स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस है जो हम हाथ से यूज़ करते हैं, और इसके दो बटन्स हैं. एक है लेफ्ट बटन, you can see here, and it's for the right handed people, और मतलब राइट हैंडेड पीपल के लिए बनाया हुआ है ये. तो वी कैन चेंज दिस बटन्स. तो इसमें एक लेफ़्ट बटन है और एक राइट बटन है, और जो ये बीच वाला जो आपको व्हील दिखाई दे रहा है, ये स्मॉल व्हील होता है इन दो बटन्स के दरमियान में. तो इट्स दैट टाइप ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस विच प्रोवाइड्स अस अ मीन्स टू इनपुट डेटा. जैसे हमें कुछ भी इनपुट करना होता है. सो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये जो माउस है, इट्स एन इनपुट डिवाइस, इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इट्स एन इनपुट डिवाइस. जैसे कि हम इनपुट डिवाइस उसको बोलते हैं जहाँ से हम एंटर डेटा करेंगे, या टेक्स्ट, या कुछ भी एंटर करेंगे कंप्यूटर सिस्टम में. दैट्स योर इनपुट डिवाइस. एंड या कमांड्स इन ग्राफिक फॉर्म, या सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट, या हाईलाइट कर सकता है हमारा टेक्स्ट, या कुछ भी वर्क कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में, या कुछ भी एप्लीकेशंस में वर्क कर सकते हैं, या यहाँ से कुछ भी हम प्रोवाइड करते हैं थ्रू यूज़र, फ्रॉम यूज़र टू कंप्यूटर सिस्टम. दैट्स योर इनपुट डिवाइस, एंड माउस इज़ वन ऑफ द बेसिक इनपुट डिवाइस. और जो माउस हैं, दैट्स यूज टू पोजिशन द कर्सर ऑन स्क्रीन. जो हमारा स्क्रीन का पोजीशन है, स्क्रीन में हम चेंज लाना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, या एडिट करना चाहते हैं, कोई भी कुछ भी वर्क हमें करना है, तो फिर उसका एडिटिंग करना चाहते हैं हम, या मॉडिफाई. फॉर एग्जांपल वी आर वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो हमने 2-3 पैराग्राफ लिखे हैं, तो अब हम चाहते हैं कि हम इनमें से कुछ मॉडिफिकेशन करनी है. फॉर एग्जांपल वी वांट टू हाईलाइट द होल टेक्स्ट. एट दैट टाइम क्या करना है हमने जो कर्सर है वो प्लेस करना है फ्रंट ऑफ द वर्ड, मतलब डॉक्यूमेंट के फ्रंट पे हमने इसको लाना है. तो एट दैट टाइम अगर हम 2 बार लेफ़्ट क्लिक करेंगे, तो इसका मतलब होगा ये सारा कुछ सेलेक्ट हो जाएगा. ये डॉक्यूमेंट जो कुछ भी हमने लिखा वो सेलेक्ट हो जाएगा. उसके बाद हम कुछ चेंज लाएंगे इसमें, लाइक हम इसका जो पैटर्न है, फॉन्ट कलर है, वो चेंज कर सकता है, या हम इसका मतलब साइज़ रिसाइज़ भी कर सकते हैं, या हम बहुत सारे
फ़ॉन्ट्स भी हैं, जैसे बोल्ड हैं या इटैलिक हैं या रोमन है, कुछ भी लिख सकते। टाइम्स रोमन या हैं या कुछ भी इनमें से हम चूज़ कर सकते हैं और वही पैटर्न फ़ॉन्ट का हम ला सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में या इस टेक्स्ट में जो कुछ भी हमने लिखा। तो या अंडरलाइन भी कर सकते हैं या बहुत सारे मतलब मॉडिफिकेशंस हैं वो हम ला सकते हैं इजीली इसमें थ्रू दिस माउस। तो और एक बात यहाँ पे, जो हमारा लेफ्ट हैंड जो है, जो हमारा राइट हैंड है, तो उसका जो उसके 5 फिंगर्स हैं। जो माउस को वर्क करने के लिए हमने 2 फिंगर्स का ज़्यादा यूज़ करना है। एक है इंडेक्स फिंगर एंड एक है मिडल फिंगर। तो ये जो लेफ़्ट बटन है, लेफ़्ट बटन के ऊपर हमें प्लेस करना है हमारा ये जो लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर है एंड राइट बटन के ऊपर हमने लाना है अपना मिडल फिंगर। तो ये आप याद रखेंगे। और जो माउस हैं इट कंप्राइज ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज़ बटन, आपने देखे हैं 2 बटन हैं, लेफ़्ट बटन और राइट बटन। लेफ़्ट बटन पे इंडेक्स फिंगर एंड राइट बटन पे मिडल फिंगर। एंड हैंडलिंग एरिया, जो एरिया होता है जैसे हम हाथ ऊपर इस पे रखते हैं वो हैंडलिंग। एंड द रोलिंग ऑब्जेक्ट, ये जो रोल है वो हम देखेंगे, जैसे कि है स्मॉल व्हील जो मैंने बताया आपको अभी, वही दैट्स ए रोलिंग एरिया। जैसे हमें जो बहुत सारे पेजेस होते हैं हमें ऊपर नीचे करना होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो हम रोल कर सकते हैं ऊपर, तो हम ऊपर चढ़ेंगे। जैसे जो ही हमने नीचे लाया तो हम नीचे आएंगे अपने टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट में। तो इस फॉर अप डाउन। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, द माउस इज़ कन्फिगर्ड टू वर्क फॉर द ओनली राइट हैंडेड पीपल। तो ये हम फिर बाज़ चेंज भी कर सकते हैं। जो हमारा लेफ़्ट है वो हम राइट कन्वर्ट कर सकते हैं और जो हमारा राइट बटन है वो हम लेफ़्ट बटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो स्लाइड चेंजेस हम ला सकते हैं माउस में। अगर हमें लेफ़्ट हैंडेड पीपल के लिए बनाना होगा, मतलब उसके लिए यूज़ करना होगा। तो ये है पोजीशन कैसे रखना है आपको माउस पे अपना हाथ। जो पुट द राइट हैंड ऑन द माउस और इंडेक्स फिंगर गोज़ टू द लेफ्ट बटन एंड मिडल फिंगर गोज़ ऑन द राइट बटन एंड होल्ड द माउस विद थंब, मतलब थंब और लिटिल फिंगर से आपको रखना है। और जब व्हेन यू हैव टू क्लिक विद द माउस, प्रेस द माउस बटन लाइटली स्लाइड, मतलब आपको ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, स्लाइटली आपको प्रेस करना है क्योंकि इट्स ए पॉइंटिंग डिवाइस एंड इट कैन वर्क वेरी वेल। एंड माउस का पॉइंटर जो है इट अलाउज टू पॉइंट ऑन द स्क्रीन। कहाँ पे स्क्रीन पे आपने कौन से चेंजेस लाने हैं उसके लिए जो माउस पॉइंटर है इट द पॉइंटर चेंज एज शोन। ये इसका मतलब जो ये पॉइंटर है, ये जो एरो है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है आपको ये एरो, ये है माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर ये इट विल अपीयर जैसे आप मूव करेंगे किसी भी प्रोग्राम में, तो इट मूव अराउंड द स्क्रीन। तो माउस को हिलाएंगे आप तो वो ये जो एरो है ये भी हिलेगा वहाँ पे। जैसे माउस ने आपने स्टेशनरी पे रखा तो ये भी मतलब एक ही जगह पे आएगा। तो इसके बाद आपने एक लाइन पे दूसरी लाइन जाना है तो आप थोड़ा सा माउस को नीचे लाना है तो ये भी आएगा। आपका जो पॉइंटर है ये इसमें भी चेंज आएंगे। एंड इट कैन आल्सो बी यूज टू मूव थिंग्स लाइक आपने जो एक टेक्स्ट एक लाइन लिखी तो उसके बाद आप चाहते हैं कि इसमें कुछ हाईलाइट करना है, इसमें कुछ इसमें थोड़ा सा आपने थोड़ा सा स्पेस लिखने हैं तो आपने ये जो सारी लाइन है ये हाईलाइट करनी है। माउस पॉइंटर रखना है टू द फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, टू द फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। जैसे आपने डबल क्लिक किए, डबल क्लिक मतलब कि आपने लेफ़्ट बटन को 2 बार प्रेस किया
डबल क्लिक हम यूजुअली मोस्टली हम यूज़ करते हैं उन सिलसिले में, उस एप्लीकेशन को खोलने में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बहुत सारे डेस्कटॉप पे आइकन्स दिए गए हैं, माई कंप्यूटर हैं या डैशबोर्ड है या एप्लीकेशंस हैं या कुछ भी सॉफ्टवेयर हैं, ब्राउज़र हैं, तो उसको खोलने के लिए आपको डबल क्लिक का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू वांट टू ओपन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो एट दैट टाइम आइकन दिया गया हुआ है या इसका लेआउट दिया गया हुआ स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे जाके माउस पॉइंट जो हाँ आपका पॉइंटर है, तो उसको आपको लाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। तो जो ही आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लाया अपना पॉइंटर, तो उसके बाद आप कर लीजिएगा डबल क्लिक। डबल क्लिक जैसे कि एक बार या दो बार किया डायरेक्ट, एक बार फर्स्ट डबल मतलब दो बार टच किया आपके लेफ्ट बटन पे, तो दो बार करने से क्या होगा, जो ये एप्लीकेशन ये खुल जाएगी, ये ओपन हो जाएगी। तो आपको फिर उसमें काम करना है कुछ भी, ये इसी का नहीं है। आप ब्राउज़र भी देखेंगे, आप वेब ब्राउज़र बहुत हैं, क्रोम है, आपके ओपेरा ब्राउज़र हैं, तो उनको खोलने के लिए डबल क्लिक करनी है। तो इसी तरह जो राइट क्लिक में बहुत सारे मेन्यूज़ दिए गए हुए हैं। मेन्यू कंटेक्स्ट मतलब पेस्ट या कॉपी या कुछ भी आपको पैटर्न कुछ भी लिखना है या कुछ भी चेंज करने हैं, वो आपके राइट वाला जो बटन है उसमें है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि ये जो माउस का हम पैटर्न है, अपना दायां हाथ वो कैसे बिठाएंगे माउस के ऊपर, उसको हाउ टू प्लेस योर right hand on your mouse. So this is the incorrect way, these are incorrect ways. Let me show you the correct way. This is the correct way, and index finger goes onto the left button of your mouse, and middle finger goes onto the right button of your mouse, and जो rolling area है स्मॉल व्हील लाइक शेप, तो उसको खुला रखना है आपको। और जो थंब है और लिटिल फिंगर इससे थोड़ा सा मतलब रखना है, मतलब थोड़ा सा अपने माउस माउस को मतलब ऐसे रखना है, अपने हाथ को थोड़ा सा जोड़ना है। इसी तरह जैसे इसने दिखाया है यहाँ पे, ये है करेक्ट पैटर्न या करेक्ट वे ऑफ होल्डिंग योर माउस with your hand, and these are the positions of your fingers, how to position your fingers onto the mouse. तो ये जो पॉइंटर हैं, इट विल अपीयर एज यू मूव इट अराउंड द स्क्रीन। ये आप देख सकते हैं, ये पॉइंटर की किस्में हैं, एक तो है एरो, ये भी माउस पॉइंटर हैं, जैसे कि इट विल अपीयर एज यू मूव इट अराउंड द स्क्रीन। तो इसके बाद ये जो है, ये आई आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आई उसी टाइम दिखेगा जब हम किसी भी डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर में काम करेंगे, तो उसके बाद आपको टेक्स्ट की ज़रूरत होगी, टेक्स्ट लिखना है, तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन जब लिखोगे या नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जब लिखोगे, उस टाइम यही आएगा, यही जो माउस पॉइंटर है, यही वहाँ पे आएगा। मतलब कि आपको लगेगा कि ये प्ले होता है, ये प्ले नहीं होता है, उस टाइम ये दिख रहा है कि आपका जो माउस पॉइंटर है वो एक्चुअली है कहाँ। तो एट दैट वेरी टाइम आपको ये पता चलता है कि हम मेरा माउस पॉइंटर यहाँ पे है, वहाँ पे है, तो मुझे वहीं जाना है। माउस को लेफ़्ट क्लिक करके वहीं पे आपने अपना जो काम करना है वहीं से स्टार्ट करना है। तो ये हो गया आपका माउस पॉइंटर। वाइल वर्किंग यानी वेब ब्राउज़र, जो मैंने बताया अभी, जो पॉइंटर है, पॉइंटर का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा वहाँ पे। इट विल चेंज टू ए पॉइंटिंग फिंगर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पॉइंटिंग फिंगर है, जैसे कि एक हैंड टाइप है, मतलब शेप ऑफ हैंड आएगा वहाँ पे ये जो यहाँ पे है। दूसरा आपने देखा एरो शेप्ड, वो वेब ब्राउज़र में नहीं आएगा। यहाँ पे हैंड शेप में आपका जो पैटर्न है माउस पॉइंटर क्या वही आएगा वहाँ पे आप टू द डिफरेंट ब्राउज़र्स।
तो यही जो हैंड है, दिस आइडेंटिफाइज ए हाइपरलिंक। तो आपने क्लिक करना है लेफ्ट माउस बटन कि कौन सा आपने हाइपरलिंक फॉलो करना है, टू हाइपरलिंक टू अनदर पेज, या आप कुछ भी चेंज लाते हैं या वाइल इंसर्टिंग समथिंग, तो वहाँ वहाँ पे जो पैटर्न आएगा, पॉइंटर शेप आएगा, वो इसी इसी शेप में आएगा। आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए वहाँ पे, यहाँ पे क्यों माउस पॉइंटर क्यों अलग है और वहाँ पे क्यों अलग है। ये डिफरेंट ब्राउज़र्स में डिफरेंट पैटर्न है। इसके 3 पैटर्न हैं। एक तो है ये टेक्स्ट टेक्स्ट में जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है ऊपर, तो दूसरा है ये हैंड टाइप, और तीसरा है एरो वाला, एरो टाइप है। एंड इसके बाद माउस ऑपरेशंस, माउस हाउ टू ऑपरेट माउस एंड व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशंस माउस कैन डू फॉर यू। तो जो माउस हैं, मैंने आपको बताया कि 3 टाइप्स के डिफरेंट माउसेस हैं। एक है वायरलेस माउस जिसमें वायर नहीं है, और एक है मैकेनिकल माउस, मैकेनिक्स, और तीसरा है ऑप्टिकल माउस। एंड ऑल माउसेस दे यूज द सेम मैकेनिकल ऑपरेशन, बट दे अकॉम्प्लिश द सेम टास्क। मतलब इसका जो पैटर्न है, वे ऑफ डूइंग वर्क, वो एक जैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी में मतलब बटन्स बटन्स होते हैं, एक 3 बटन्स होते हैं, और किसी में 2 बटन, लेफ्ट और राइट बटन, और बीच में रेड लाइट भी होती हैं, और ऊपर से वो स्मॉल व्हील शेप्ड जो ऊपर नीचे, मतलब अगर आपको जाना है ऊपर या अगर आपको नीचे आना है तो वो उसी के लिए वो स्मॉल व्हील। और some of them use the tracking ball at the bottom and the tracking ball, and some of them use type of light beam, यही light beam to detect the mouse motion of a mouse। तो कुछ माउसेस में आप में लाइट बीम देख सकते हैं कि to detect mouse operations, मतलब mouse is functional or not। तो लैपटॉप्स आर इक्विप्ड विद दिस टाइप ऑफ ऑपरेशंस, कि आपके जो लैपटॉप हैं, लैपटॉप पे भी आप देख सकते हैं कि आप बहुत सारा एक माउस ऑपरेशन होता है वहाँ पे, ये विद स्मॉल फ्लैट सरफेस होता है वहाँ पे, और वहाँ पे भी 2 बटन्स हैं, एक है लेफ्ट बटन और एक है राइट बटन। और ये जो स्मॉल फ्लैट सरफेस है, ये है मतलब इसका जो जॉब है, इसका जो जॉब है वो होता है माउस के वहाँ पे, यहाँ जो माउस पॉइंटर है उसको थोड़ा सा मतलब टू द टॉप और बॉटम जाना होगा, तो वो वही करता है, ये जो फ्लैट सरफेस होता है आपके लैपटॉप पे। एंड sometimes with a very short stick for performing same job as mouse। कभी कभार एक शॉर्ट स्टिक होता है आपके पास फॉर परफॉर्मिंग सेम जॉब एज योर माउस। आपने देखा होगा कि बहुत सारे फ़ोन्स हैं इस ज़माने में, हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, तो उसमें वो शॉर्ट स्टिक्स होते हैं हमारे पास, तो उसी की मदद से हम ऊपर भी जाते हैं या नीचे भी, या कुछ भी चेंज करना होता है या टाइप हमें नंबर करना होता है, तो उसकी मदद से हम कर सकते हैं। तो द मोस्ट कन्वेंशनल काइंड ऑफ माउस हैज़ 2 और 3 बटन्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 बटन्स होते हैं, एक है लेफ्ट बटन और एक है राइट बटन, और तीसरा बटन होगा किसी नीचे, मतलब ऑन ऑफ के लिए। दिस बटन्स आर यूज फॉर डिफरेंट एक्शंस। क्या क्या एक्शंस हैं? अगर हम लेफ़्ट बटन यूज़ करेंगे, लेफ़्ट बटन में क्या होता है, लाइक सेलेक्ट कर सकते हैं हम, मतलब टेक्स्ट हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या लेआउट। कभी कभार हम जब हमने कंप्यूटर को ओपन किया, मतलब स्विच ऑन किया, तो उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे लेआउट्स होते हैं वहाँ पे। जैसे कि हमने करना है कि ये जो माई कंप्यूटर है उसको लाना है ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन, तो हम इसी माउस के थ्रू हम ला सकते हैं। जैसे कि हमने माई कंप्यूटर को ड्रैग किया,
ड्रैग करके हमने उसको लेफ़्ट बटन प्रेस करके रखा, तो उसके बाद जो ही हमने ड्रैग किया हम प्लेस चेंज कर सकते हैं, मतलब एक लेआउट को दूसरे लेआउट तक। तो हम ड्रैग करके हम ला सकते हैं, फिर ड्रॉप करेंगे किसी एक जगह। या हमें बहुत सारे ऑडियोज़ हैं, तो इस एक फ़ोल्डर में चाहते हैं हम इसको एक फ़ोल्डर में ट्रांसफ़र करने और दूसरे फ़ोल्डर में हम 2 फ़ोल्डर इकट्ठे हम खोल सकते हैं अपने उस कंप्यूटर सिस्टम पे। तो जो ही हमने एक को सेलेक्ट किया एक ऑडियो फ़ाइल को, तो उसको हम लेफ़्ट बटन प्रेस करके रखेंगे। तो उसके बाद हम ड्रैग करेंगे माउस को, मतलब थोड़ा सा वहाँ पे दूसरा जो हमने खोला होगा विंडो, तो उसी में डाल सकते हैं, हम ड्रॉप कर सकते हैं इजीली। तो ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशन ये बहुत इजी है, एंड जो माउस है वो उसी पे काम करता है, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशंस पे। तो ये जो हमारी जो ये जो लेफ़्ट बटन है, वो मोस्टली हम वही यूज़ करते हैं। जो कभी कभार हम राइट बटन का भी यूज़ करते हैं, उसमें बहुत मेन्यू कंटेक्स्ट्स होते हैं। तो विद द राइट एक तो हो सेलेक्ट, एक तो ड्रैग और मूव भी करा सकते हैं हम। कुछ भी मूव करना होगा हमें, ब्राउज़र्स या ऑडियो फाइल्स या वीडियो फाइल्स या टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट या कुछ भी हम मूव कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन विंडो फ्रॉम टू अनदर, या फ्रॉम वन फाइल टू अनदर, फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर फोल्डर। और हम पेस्ट भी कर सकते हैं इजीली। मतलब फॉर एग्जांपल we are typing something in our document, so after that we copied all the data। तो कंट्रोल से हमने प्रेस किया, तो उसके बाद हम चाहते हैं कि थ्रू माउस हम ये जो हमने लिखा है इसको कॉपी करेंगे हम दूसरे विंडोज़ में या दूसरे फाइल में। तो हम क्या करेंगे, इसी को हाईलाइट करेंगे माउस से, माउस का जो पॉइंटर है उसको फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट लाएंगे और डबल प्रेस करेंगे। डबल प्रेस करके क्या होता है, ये जो पूरा जो हमने डॉक्यूमेंट लिखा तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट होने के बाद यही जो हमने कुछ लिखा इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग जो जब हम करेंगे तब तक हमने लेफ़्ट प्रेस को क्लिक करके रखना है। फिर ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके हमने फिर नया जो विंडो है या हमारे पास नई जो फाइल है तो उसमें डाल सकते हैं। तो दीज आर द ऑपरेशंस ऑफ योर माउस। और विद द राइट बटन क्या हम कर सकते हैं, मेन मेन्यूज़ पे हम काम कर सकते हैं फॉर एन आइटम। तो बहुत सारे मेन्यूज़ हैं जो या ऐसे कि पेस्ट कर सकते हैं या कॉपी या मॉडिफायर सेटिंग्स भी होते हैं वहाँ पे। कुछ भी हम कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं या एडिट भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। तो दीज आर सम मेन्यू आइटम्स ऑफ योर राइट बटन। तो कौन कौन से कॉमन माउस एक्शंस हैं? सम ऑफ द कॉमन माउस एक्शंस विच माउस कैन डू और क्लिक और लेफ्ट क्लिक। क्लिक हम मोस्टली हम क्लिक कहते हैं उस टाइम जब हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे। इट्स यूज टू सेलेक्ट एन आइटम, मतलब कुछ भी आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट एन आइटम, उसमें आपको सेलेक्ट करने के लिए माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करना है एंड प्रेस डाउन वंस ऑन द लेफ्ट बटन विद योर इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर इज अप्रोप्रिएट, ये अप्रोप्रिएट हमारे लिए है। जो इंडेक्स फिंगर है उसको प्लेस करना है किस पे, टू द लेफ्ट बटन and double click whenever you are going to start a program, you are going to start a new program. At that very time you have to make use of the double click। डबल क्लिक यही है, लेफ्ट क्लिक को 2 बार टच करके प्रेस करके, ये दैट्स नोन एज डबल क्लिक। and right click is you have to make use of your middle finger
and when you press it right click with your middle finger, that's known as right click. तो right click से हमारे बहुत सारे set of commands या available options होते हैं, menus, सब menus options available होते हैं, like delete है, like play, like edit, like बहुत सारे like paste या copy, सब कुछ दिया गया हुआ है राइट क्लिक पे। तो उसमें हम कुछ भी लिखेंगे, हमें उसमें हम कुछ भी काम कर सकते हैं यूजिंग राइट क्लिक एंड गो टू मेनू आइटम्स। तो हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो उसके बाद है ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ड्रैग एंड ड्रॉप हम एक टेक्स्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरी विंडो में, या एक लेआउट को दूसरे प्लेस कर सकते हैं दूसरी जगह, या आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं विद इन द कंप्यूटर, या कुछ भी कर सकते हैं। दो विंडोज़ को इकट्ठे खोल के हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद द ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशन। ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशन मेनली यूज़ करते हैं हम विद यूज़ ऑफ काम करते हैं उस पर विद यूज़ ऑफ माउस। तो माउस का यूज़ जब हम करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशन, उस टाइम हमने जो हमारा लेफ़्ट बटन होता है माउस का, उसको प्रेस करके हम ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। तो हमें वी हैव टू position on the mouse of position the mouse on an object and hold down the left side of the mouse। hold करके रखना है हमें लेफ्ट साइड ऑफ योर माउस बटन तब तक जब तक ना आप ड्रॉप करेंगे दूसरी जगह कुछ भी आपने जो टेक्स्ट या वीडियोस या आइडियोज़ या कुछ भी फाइल्स आपने ड्रैग किए हुए हैं। और इसके बाद है स्क्रॉल क्या है? स्क्रॉल बार स्क्रॉल करते हैं आप, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फ़ोन इनकमिंग कॉल आते हैं आपके फ़ोन पे, तो आप स्क्रॉल करते हैं, ऊपर लेता है अपना जो थंब है या फिंगर है तो ऊपर लेते हैं, इसको कहते हैं स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, टॉप बॉटम या लेफ़्ट राइट की ओर। अगर जो हमारा डॉक्यूमेंट है अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो एट दैट वेरी टाइम हमारे पास एक स्क्रॉल बार आता है। स्क्रॉल बार ये दिखाता है हमें कि आपकी जो फाइल है जिसमें आप काम करते हैं वो कितनी बड़ी है। तो हम स्क्रॉल बार नीचे लाएंगे या ऊपर लाएंगे, वो टू द राइट मोस्ट फ्रॉम द टू द राइट टॉप ऑफ द कॉर्नर वो होता है स्क्रॉल बार पे टच हम करेंगे लेफ़्ट क्लिक से, लेफ़्ट क्लिक को दबा के फिर स्क्रॉल बार को नीचे लाएंगे, तो एट दैट वेरी टाइम हम देख सकते हैं पूरी जो हमारी जो फाइल है वो कितनी बड़ी है। या नीचे भी आप देख सकते हैं टू द लेफ़्ट साइड ऑफ योर लेफ़्ट मोस्ट कॉर्नर, नीचे बॉटम लेफ़्ट बॉटम पे आप देख सकते हैं, उस पर टच करोगे तो आपका जो स्क्रॉल बार आएगा वो आप ले सकते हो टू द राइट मोस्ट पार्ट ऑफ योर सिस्टम, राइट मोस्ट पार्ट ऑफ योर विंडो। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी विड्थ कितनी है डॉक्यूमेंट की। तो टॉप बॉटम से आपको ये पता चलेगा कि ऊपर से नीचे तक कितनी पेज हैं। एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेज डाउन की या एरो कीज, पेज डाउन की होते हैं ऊपर नीचे जाना, तो उनको यूज़ अगर आप नहीं करेंगे तो आपका एक और ऑप्शन है यहाँ पे, वो है स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार का इस्तेमाल हमने बहुत बार किया है, करते भी हैं अपने फ़ोन में, या फ़ोन में जब हमारा कोई कुछ पीडीएफ फाइल्स होते हैं वो बहुत लंबी होती हैं, जैसे कि उसमें 30 पेज या 40 पेज होते हैं, तो हम पेज को ऊपर करेंगे तो साइड से हम देखते हैं, साइड व्यू में हम देखते आ रहे हैं कि जो हमारा छोटा सा एक बार होता है वो नीचे नीचे की ओर आता है। उससे ये पता चलता है कि आप किस पेज में हैं। तो आप whether you are in page 5, whether you are in page 29, whether you are in page 39, इससे ये पता चलता है जितना नीचे होगा वो उतना उतना ज़्यादा पेज नहीं होते, जितना ऊपर होगा वो उसका मतलब है कि नीचे भी बहुत ज़्यादा मटेरियल है अभी, या नीचे भी बहुत सारे पेजेस हैं अभी। तो इट्स ऑल अबाउट स्क्रॉल बार्स। या एक और ऑप्शन है यहाँ पे माउस में, जो आपका जो स्मॉल जो व्हील होता है, व्हील से आप इजीली आप उसको
जब आप व्हील को प्रेस करोगे, सॉरी, जब आप व्हील को मतलब स्मॉल व्हील जो बीच में होता है, लेफ्ट और राइट क्लिक के बीच में होता है जो व्हील, उससे भी आप टू द टॉप ऑफ योर डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, या टू द बॉटम ऑफ योर डॉक्यूमेंट विद द यूज़ ऑफ द व्हील। व्हील को आपको मूव करना है टू द टॉप, आप ऊपर चढ़ सकते हैं। आपको व्हील को आप मूव कर सकते हैं नीचे, तो आप नीचे भी आ सकते हैं डॉक्यूमेंट में। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इन द माउस। एंड ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग क्या होता है? ब्लॉकिंग भी एक ये वो ब्लॉक नहीं है व्हाट्सएप पे आप ब्लॉक करते हैं, दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो ब्लॉकिंग एक इज अनदर वे ऑफ सेलेक्टिंग टेक्स्ट। कैसे आप सेलेक्ट टेक्स्ट करोगे? फॉर एग्जांपल कुछ लिखे आपने लाइन्स दो तीन कुछ किसी नोट पैड में या कुछ में, तो आप अपना जो पॉइंटर है वो टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट लाओगे। जैसे आपने बिगिनिंग में अपना जो टेक्स्ट के बिगिनिंग में आपने लाया, तो आप फिर उस टाइम डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करके ये मतलब हाईलाइट हो जाएगा सारा कुछ, जो कुछ भी कहा आपने टेक्स्ट। तो इसका मतलब एक कि आपने आप चेंजेस करने हैं उसमें। तो चेंजेस इस टेक्स्ट में आपने चेंजेस लाने, मॉडिफिकेशन लाने, इसी का मतलब है ब्लॉगिंग। तो कुछ भी ला सकते हैं आप इंक्रीज कर सकते टेक्स्ट, या फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, या आप डिलीट कर सकते हैं, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। वेदर यू वांट एडिट एंड यू वांट टू फॉर्मेट दिस इज इन ब्लॉकिंग। सो एट दैट वेरी टाइम आपको बिगनिंग ऑफ द वर्ड या बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में जाना है, फिर टच करना है। तो आजकल के जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं हमारे विंडोज़ 13 या विंडोज़ 10 में, वहाँ पे जब आप टेक्स्ट को हाईलाइट करोगे, तो टेक्स्ट को हाईलाइट करके ही आपको एक मेन्यूज़ आते हैं, बहुत मतलब एक ग्रुप ऑफ मेन्यूज़ आपको वहाँ पे दिख जाते हैं वहीं पे टेक्स्ट में ही। तो वो है होता है कलर के लिए, या साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए, या बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, आप देखोगे वो सब वहाँ पे। तो एट द एंड ऑफ टेक्स्ट और सेंटेंस लीज द लेफ्ट बटन। तो आप क्या है ये, क्लिक एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, किया क्लिक, तो फिर होल्ड डाउन द लेफ्ट बटन। अच्छा, लेफ्ट बटन को होल्ड करके रखना है तब तक। देन ड्रैग अलोंग द टेक्स्ट, ड्रैग करना है टेक्स्ट एंड सी इट बीइंग हाईलाइटेड इन द ब्लैक। तो ये ब्लैक में आएगा, सीधी सी बात है, ये ब्लैक में आएगा, क्योंकि हाईलाइट जब करते हैं, हाईलाइट मैन कलर वहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो आता है ब्लैक में। जब कोई भी हम हाईलाइट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, हाईलाइट के टाइम वो ब्लैक कलर में आता है। तो एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट और सेंटेंस फिर आपको रिलीज़ करना है, फिर लेफ्ट बटन को रिलीज़ करना है। जब आपने ड्रैग और ड्रॉप ऑपरेशन कंप्लीट किया, तो फिर आपने रिलीज़ करना है इजीली। तो इट वाज ऑल अबाउट द माउस। एंड कल हम देखेंगे कि टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स, या आपका जो सिटिंग पोस्चर है कीबोर्ड पे आप कैसे बैठेंगे, या आप कैसा जो अपना बॉडी पोस्चर है वो कैसा मेंटेन करना है वहाँ पे। तो थैंक यू ऑल।